میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے اور سب سے چھوٹی میری 10 سالہ بہن رشنا۔ وہ بہت خوبصورت بالکل جاپانی گڑیا سی لگتی تھی، ہم سب اسے گڑیا ہی کہتے تھے۔ میری جب شادی ہوئی تو وہ باربی فراق پہنے بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی، سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری بہن کی آنکھیں ہنزل گرین رنگ کی تھی، دودیاں رنگت تھی اور براؤن بال۔ 10 سال کی عمر میں بھی وہ اتنی حسین تھی کہ جو اسے دیکھتا اپنی آنکھیں جھلکنا بھول جاتا۔ وہ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کی اچھی تھی، اس لیے دکھنے میں 12-13 برس کی لگتی تھی، لیکن تھی بے حد معصوم۔ اسے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، وہ ہم سب بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ ہم نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن میری شادی کیا ہوئی، میری بہن پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن مجھے امی کا فون آیا، کہنے لگی کہ رشنا ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آئی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میں پریشان سی ہو گئی تھی، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رشنا گھر کے قریبی اسکول میں ہی پڑھتی تھی، کہاں جا سکتی تھی؟ میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی، میں بے حد پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ ایک دیور ہی تھا جو ابھی کالج سے واپس آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے بھی مجھے والدہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے دیور کے ساتھ ہی رکشے میں میکے پہنچی تھی۔ میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا، مغرب کا اندھیرا چھا چکا تھا، اب تو بات محلے میں بھی پھیل چکی تھی۔ بہت سی محلے دار خواتین ہمارے گھر موجود تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ اغوا ہوگی اور کوئی کہنے لگی آج کل تو کم عمر بھی لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، پھر نکاح نامے کے ساتھ ہی گھر آتی ہیں۔ امی پہلے سے روئی جا رہی تھی۔ میرے والد اور دونوں بھائی رشنا کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں دل ہی دل میں رشنا کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مکمل چھا چکا تھا، پڑوسی بھی واپس لوٹ چکے تھے۔ میرے والد اور بھائی بھی تھک ہار کر واپس آ چکے تھے، گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ میری بات پر بھائی کہنے لگا ہم پولیس کے پاس بھی گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اکثر لڑکیاں خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں، نکاح کر لیتی ہیں اور دوڑیں ہم پولیس والوں کی لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا وہ پولیس والا پاگل ہے؟ رشنا تو ابھی صرف 10-11 سال کی ہے۔ میری بات سن کر میرا دوسرا بھائی غصے سے کہنے لگا آج کل عمر کی قید نہیں ہوتی، ہم نے خود اسکول کے فوٹیج کیمرے میں دیکھا ہے۔ اسکول سے کچھ دور ایک بائک کھڑی تھی، وہ خود ایک بائک والے کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں کیمرے کی آخری حد تھی، اس لیے ٹھیک سے کچھ بھی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی وہ کس کے ساتھ گئی تھی۔ لیکن یہ سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک بائک پر بیٹھ کر گئی تھی۔ اس خبر نے تو ایک طوفان سا براپا کر دیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ رشنا خود کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی دیکھی گئی ہے، اس لیے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لیکن میرا اس بات پر دل نہیں مان رہا تھا، وہ بے حد معصوم سی تھی، اس نے تو آج تک مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، پھر 10-11 سالہ بچی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ہم سب کی وہ رات کربناک گزری تھی۔ ایک رات ہی کافی ہوتی ہے ایک لڑکی کی بدنامی کا سبب بننے کے لیے، چاہے وہ عمر کے جس مرضی حصے میں ہو۔ رات بھر میرے شوہر کے بھی مجھے فون آتے رہے، کہنے لگے کہ جب وہ آفس سے لوٹ کر آئے ہیں بخار میں مبتلا ہیں، اس لیے میرے پاس نہیں آ سکے، لیکن وہ مجھ سے بار بار گڑیا کا پوچھ رہے تھے وہ گھر پہنچی کہ نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بہت تیز بخار تھا، اس کے باوجود بھی وہ بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی بچی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے باپ بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس بات پر یقین ہٹ بیٹھے تھے کہ گڑیا اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ میری والدہ کے آنسو بھی اب خشک ہو گئے تھے۔ دوپہر میں ہماری گلی میں شور سا مچا ہوا تھا، جب باہر نکل کے دیکھا تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سامنے رشنا اجڑی بکھری حالت میں روتے ہوئے گھر کی طرف چلی آ رہی تھی اور محلے کی خواتین اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہی تھی، لیکن وہ چپ تھی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچی تھی، اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے جیسے ہی گھر کے اندر لائی، اسے دیکھ کر میرے والد اور میرے بھائی دیکھ کر اشتغال میں آگے، کہنے لگے یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر واپس لوٹی ہے، اس لیے ہم اسے کسی بھی صورت اپنے گھر پر رہنے نہیں دیں گے۔ میری والدہ جو کل تک گڑیا کے لیے کسی بھی ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہی تھی، وہ اس وقت اسے تنفر سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی اور والد گڑیا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئے کہ بتا وہ کون تھا موٹر سائیکل والا، تو کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کر گئی تھی؟ عجیب بات یہ تھی کہ وہ چپ تھی اور اس کی چپ نے جیسے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، وہ سب کچھ بتا دے، کسی سے نہ ڈرے کہ وہ موٹر سائیکل والا کون تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ڈری سہمی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میرے والد نے اسے بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ گلی میں جا گری تھی، کہنے لگے کہ جس کے ساتھ چلی گئی تھی جا اسی کے ساتھ آج بھی دفع ہو جا۔
हमारे घर से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहकर मेरे वालिद ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बहुत कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं, गुड़िया कहाँ जाएगी? वो कहने लगे कि मैं इसे घर पर रखकर बदनामी मोल नहीं ले सकता, लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे, बेहतर है कि ये वहीं चली जाए जहाँ से आई है, वरना मर जाए। न जाने ये अल्फाज मेरे बाप ने कैसे अपने मुंह से अदा किए थे। मैंने अब्बा को बहुत समझाया, भाइयों की मिन्नत समाजे की, मेरे शोहर जफर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना मेरे वालिद गुड़िया को घर पर रखने के लिए आमदा थे और ना ही भाई। लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे बेअसरार छोड़ देती। मैंने जफर से कहा कि अभी मेरे घर वाले गुस्से में हैं, इसलिए गुड़िया को अपने घर ले जाते हैं। जब मेरे बाप भाइयों का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो वापस भेज देंगे। मैं गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले। मेरे शोहर मेरी बात पर राजी हो गए। मैं गुड़िया को अपने साथ अपने घर लेगी। मेरी सास भी सारी हकीकत से वाकिफ थी। मुझसे कहने लगी, बहू क्यों अपने घर ले आई हो? इस जैसी लड़की को पनाह देने की बजाय इसका कत्ल कर देना चाहिए। तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, उम्र देखो इसकी, और काम क्या किया है। मेरी सास ने भी गुड़िया को देखकर नागवारी का इजहार किया था, लेकिन मेरे शोहर ने इन्हें चुप करवा दिया कि बस वो चंद दिन ही यहाँ रहेगी, फिर अपने घर चली जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चंद दिन आप चुप ही रहिएगा। मेरी सास ये सुनकर मुंह बसोरे अपने कमरे में चली गई। मैंने 2 दिन गुड़िया को अपने कमरे में ही रखा था। जफर अपने छोटे भाई के साथ ही रहे। मैंने गुड़िया से पूछने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर इसने लब कशाई नहीं की। न जाने इसे किस बात का डर था, क्या खौफ लाहक था। जब भी मैं इसे पूछती वो रोने लग जाती, इसकी सफेद नंगर पीली पड़ जाती थी, वो अपनी मुठियां बीचने लगती, कभी अपने बाल नोचने लगती। इसकी गैर होती हालत देखकर मैं चुप सी हो जाती। लेकिन यह सिलसिला भी कब तक चल सकता था। चंद दिन बाद ही जफर का मूड मुझसे बिगड़ने लगा। वो साफ लफ्जों से तो ना कहते, लेकिन जाहिर है हमारी नई नई शादी थी, कब तक वो इस बात को बर्दाश्त करते कि मेरे साथ मेरी बहन ही कमरे में डेरे जमाए। मेरी सास भी बस जफर की वजह से चुप थी, वरना मेरी बहन को जब भी देखती नागवारी से मुंह बनाए गुजर जाती। पहले तो मैंने भी सोचा कि बहन को सास के कमरे में सला दूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी गुड़िया को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो भी हुआ था, मेरी बहन के साथ ज्यादती तो हुई थी, इसकी जहनी हालत ठीक ना थी और मेरी सास की छिटी बातें से मजीद जहनी अजियत में मुबतला कर सकती थी। इसलिए मैं ये सोचकर परेशान थी कि गुड़िया को रखूं कहाँ। मेरे ससुराल में बस 3 ही कमरे थे, एक मेरी सास का था, एक जफर का और एक मेरे देवर जमाल का। वो 18 साल लड़का था, वो कॉलेज में पढ़ता था। इसके अलावा बस घर में एक स्टोर था जहाँ घर का फालतू सामान रखा था। मैं गुड़िया को वहाँ कैसे रख सकती थी? जब से मैं इसे अपने घर लाई थी वो पल पल मेरे साथ ही रहती थी, एक लम्हा भी मुझसे दूर होने को तैयार ना थी। मैं ये तक नहीं जानती थी कि वो लग जगह सोने को तैयार भी होगी कि नहीं। कुछ दिन इसी कोशिश बीच में गुजर गए, लेकिन इसके बाद तो जफर ने एक दिन मुझसे साफ कह दिया कि अपने घर वालों से बात करो, गुड़िया कब तक यहाँ रह सकती। मैंने अपनी अम्मा से बस चंद दिन का ही कहा था। वो रोज मुझसे पूछती हैं कि बहू की बहन अपने घर वापस कब जाएगी। मैंने सोचा कि शायद अब्बा और भाइयों का गुस्सा कुछ कम हो तो मैं इनसे बात करूं कि वो गुड़िया को अपने पास बुला ले। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात अपनी वालदा से कहा, उन्होंने कहा कि जहर देकर मार डाल गुड़िया को, वरना तेरे बाप भाई इसका गला घोट कर मार डालेंगे। ये कहकर अम्मी ने फोन बंद कर दिया। मैं बेहद परेशान थी कि क्या करूं, कैसे अपनी बहन को बेअसरार छोड़ूं, लेकिन मैं करती भी क्या। एक दिन मैंने स्टोर रूम का जायजा लिया। वो काफी छोटा सा कमरा था। मैंने अपने देवर को अपने साथ लगाया और फालतू काट कबाड़ बाहर फेंकवा दिया। घर में जमीन ही एक बसेरा बचा था। मेरे देवर मुझसे पूछने लगा कि भाभी ये सब आप किसके लिए कर रही हैं? मैंने कहा कि गुड़िया अब यहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर कहने लगा, आप अपनी बहन को मेरा कमरा दे दें, स्टोर में मैं गुजारा कर लूंगा। जब वो अपने घर चली जाएगी तो फिर मैं भी यही बात की थी कि मेरी सिसकियां शुरू हो चुकी थी। मैं कब से जावत बंधे हुए थी। मुझे रोता देखकर जमाल भी परेशान हो गया। मैंने कहा कि इसका मेरे घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बाप और भाई इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अगर वो वापस की तो इसे जान से मार डालेंगे। तुम अपने कमरे में ही रहो, वरना अम्मा जी मुझे बातें सुनाएंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि अब आप रोए मत, जो आपको ठीक लगता है वही कर ले। मैंने रात तक स्टोर रूम को ये कमरे की शक्ल दी थी, लेकिन जब रात को मैंने गुड़िया से वहां सोने के लिए कहा तो वो रोने लगी। मरे गले लगकर मुझसे बीच कर कहने लगी, आप ही मुझे अकेला मत छोड़े, वो मुझे मार डालेगा। ये पहला जुमला मैंने गुड़िया से इस शख्स के बारे में सुना था, वरना वो कुछ भी नहीं कहती थी। मैंने कहा कि कौन मार डालेगा? वो रोने लगी, कहने लगी कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हमने कहा कि मुझे बताओ वो कौन है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जिसने मेरी मासूम बहन की जिंदगी को बर्बाद कर डाला। मैंने गुड़िया को खुद से जुदा किया और इसके आंसू पहुंच कर पूछने लगी। वो जैसे ही कुछ कहने लगी, जफर ऑफिस से वापस आ चुके थे। गुड़िया जफर को देखते ही चुप सी होगी, फिर फौरन से मेरे कमरे में चलेगी। जफर मुझसे कहने लगे, तुमने अपने घर वालों से बात की? मैंने इन्हें वो सब कुछ बता
बता दिया जो मेरी वालदा ने कहा था। फिर ये भी कह दिया कि गुड़िया आज के बाद स्टोर में रह लिया करेगी। मेरी बात सुनकर जफर के तने चेहरे पर कुछ नरमी सी आई थी। कहने लगे ये ठीक है, बिल्कुल मैं इसे एक कमरे की तरह बना देता हूँ, यहाँ एक सिंगल बेड रखवा दूंगा। वो स्टोर रूम का जायजा लेते हुए बोले, मैंने बड़ी मुश्किल से गुड़िया को स्टोर रूम में सोने पर आमदा किया था। मैंने इसे कहा कि वो अपना कमरा अंदर से लॉक रखे, जब तक मैं न कहूँ वो दरवाजा न खोले। बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात समझी थी, लेकिन वो इस वक्त बेहद खौफजदा थी, लेकिन मेरी बात मान गई। उसने स्टोर रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गई। जफर का मूड आज बहुत अच्छा था। वो मुझसे कहने लगे वो कुछ दिन में ही स्टोर को कमरे की तरह से सेट करवा देंगे। फिर यही हुआ था, स्टोर को एक कमरे की शक्ल दे दी गई थी। गुड़िया अब वहीं रहने लगी, लेकिन रहती चुपचाप सी थी। जब भी जफर लगती थी वो चुपचाप जफर के घर आती। गुड़िया की रंगत उड़ने लगती थी। वो फौरन से अपने कमरे में चली जाती, खाना वही खाती, खाई कमरे से बाहर ना निकलती। यही रवैया इसका जमाल के लिए भी था। वो जमाल को भी देखकर अपने कमरे में चली जाती। मुझे लगा कि शायद इस हादसे ने गुड़िया के दिल में हर मर्द के लिए खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन एक बार जो मैंने देखा वो मुझे दंग सा कर गया था। एक बार मैं सुबह सवेरे उठी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे से बाहर आई मुझे किचन में सरगोशियों की आवाज आने लगी थी। जब मैं किचन में गई तो जमाल नाश्ता बना रहे थे। गुड़िया भी डरी सहमी वहीं एक कोने में खड़ी थी। वो इसी से ही बातें कर रहा था, बल्कि इससे पूछ रहा था कि वो फ्राई अंडा खाएगी या बॉयल। वो गुड़िया से बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन वो डरी सहमी खड़ी थी। मुझे देखकर मेरे पास आई। जमाल ने पलटकर मुझे किचन के दरवाजे के पास देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि आपकी बहन को भूख लगी थी, कब से आपके कमरे के बाहर बैठी थी। मैंने कहा भाभी संडे को देर से उठती है, लेकिन ये तो कुछ बोलती नहीं है। कब से पूछ रहा हूँ कि क्या नाश्ता करोगी। वो बहुत आम से अंदाज से बात कर रहा था, लेकिन गुड़िया मेरे साथ झंझ रही थी। मैंने कहा जमाल तुम गुड़िया से दूर रहा करो। मेरी बात सुनकर जमाल ने मुझे बजस्ता बड़ी हैरत से देखा था। कहने लगा भाभी आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर अम्मा जी ने यूं तुम्हें गुड़िया के साथ बातचीत करते देख लिया तो मेरी बहन का ये दर भी बंद हो जाएगा। ये कहकर गुड़िया को वापस इसके कमरे में लेगी। इसे कहा तुम यहाँ बैठो। फिर मैं वापस किचन में आ गई। जमाल अब भी वहीं खड़ा था। मुझे देखकर अपना नाश्ता लेकर बाहर निकल गया, लेकिन न जाने कैसा अजीब शख्स था। इसने गुड़िया से बातचीत करना छोड़ी नहीं थी। जब भी मौका देखता गुड़िया से इधर उधर की बातें करने लगता। कभी बाजार से इसके लिए चॉकलेट ले आता। वो इसे देखते ही डर के अपने कमरे में चली जाती। बात यहीं तक नहीं थी। एक दिन तो जो बात जमाल ने खाने के दौरान हम सब से कही, इसे सुनकर हम सब अपना खाना पीना ही भूल गए थे। वो अम्मा जी से कहने लगा कि वो गुड़िया से निकाह करना चाहता है। इस बार ने एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। मेरी सास जो अब तक शायद जफर की वजह से चुप थी, अब फट पड़ी थी। कहने लगी कि अभी के अभी इस लड़की को बाहर निकालो। इस कमीनी ने न जाने इतनी सी उम्र में किस किस के साथ मुंह काला किया है, और अब ये मेरे बेटे पर डोरे ला रही है। मेरी सास तो गुस्से से आप गोला हो चुकी थी। मैं तो ये सुनकर सांस लेना ही भूल गई थी। जमाल को सूझी क्या थी ऐसी बात मुंह से निकालने की। शायद इसने मेरी इस दिन के बाद का बदला लेने के लिए ये सब किया था। इसे मेरा मना करना बुरा लग गया था, तभी इसने ये निकाह का शोशा छोड़ा था। जानता था कि ये सब सुनकर गुड़िया को मेरी सास धक्के देकर घर से निकाल देगी। जफर भी ये सुनकर बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा जमाल ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा हरकत नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। मैंने जमाल से कहा तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा हरकत नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। वो मेरी सुनकर बोला निकाह मैं रचना से ही करूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कहें। अच्छा है कि आप ये काम घर की चार दीवारी में ही कर दे, वरना मैं इसे कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मेरी सास ने ये सुनकर जमाल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कैसी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, खबरदार जो बकवास की। तो इसके बाद जो कुछ जमाल ने बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहने लगा गुड़िया के साथ ज्यादती मैंने की थी, मैं ही इसी का कसूरवार हूँ। ये सुनकर मेरा सांस ही रुक गया था। मेरी सांस आंखें फाड़े इसे देखने लगी। जफर भी शदीदा रह गए थे। जमाल शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बोला मुझे वो पहली बार दिखने में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो अभी भी कम उम्र है, इसलिए अम्मा जी कभी भी मेरी इससे शादी नहीं करेंगी। और वैसे भी अम्मा जी को मेरे लिए अपनी भतीजी पसंद है, इसलिए वो इस रिश्ते पर कभी नहीं मानेगी। फिर जितनी रचना खूबसूरत और बोली बाली थी मेरे हवासों पर छा गई थी। इन दिनों मुझ पर न जाने क्या बूझ सवार था कि मुझे रचना के अलावा कुछ नहीं सूझा था। इसलिए एक दिन मैं इसके स्कूल के कुछ फासले पर बाइक लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो वहां से गुजरने लगी मैंने इसे झूठ कहा कि तुम्हारी आपी की तबीयत बहुत खराब
किताब है, वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। ये सुनकर वो मेरे साथ बैठ गई। मैं इसे अपने दोस्त के खाली मकान में ले गया। इसे क्लोरोफॉर्म संगा कर बेहोश करके मैं अपने घर वापस आ गया ताकि मुझ पर शक न हो। फिर यही हुआ, कुछ देर बाद ही भाभी के मेके से फोन आ गया। मैं भाभी को लेकर इनके मेके चला गया। कुछ देर में वहां रुककर वापस रचना के पास चला गया। इस वक्त मुझ पर शैतान हैवी हो चुका था, इसलिए मुझे इस मासूम पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने इसे ज्यादती का निशाना बना लिया। वो रोती रही, मुझसे पनाह मांगती रही, लेकिन मुझ पर तो जैसे शैतान हैवी हो चुका था। मैं इसकी बेबसी का फायदा उठाता रहा। फिर इसे इतना मारा, धमकाया कि अगर इसने मेरा नाम लिया तो इसे जान से मार डालूंगा। वो छोटी सी थी इसलिए डरी। इसके बाद इसने इसी जगह बंद करके घर आ गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने किया वो गलत था। मैंने सोचा कि जब बड़ी होगी तो इससे शादी कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके घर वाले इसे कबूल नहीं करेंगे। वो यहाँ आ गई और मेरे लिए आजमाइश बन गई। मैं इससे दूर नहीं रह सकता, बजाय इससे कि मैं फिर से गुनाह करूं। आप मेरा निकाह इज्जत से रचना से करवा दें। जमाल की बेहिसी सुनकर मैं इसे मारने लगी थी। जफर का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख था। मेरी सास भी चुप थी। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे तुम जैसी शख्स से अपनी बहन का इनकार नहीं करना। मैं तुम पर केस कर दूंगी, तुम्हें जेल भेज दूंगी। वो चुपचाप मार खाता रहा। फिर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है, बेशक आप मुझे जेल भेज दे, लेकिन इससे आपकी बहन की इज्जत वापस नहीं आएगी, ना ही इसे दिया गया जख्म। मैं ही इससे सहारा भी दूंगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़े कह रहा था। मेरी सास भी रोने लगी, जमाल को बुरा भला कहने लगी। फिर दूसरे ही दिन रचना का निकाह जमाल से हो गया। वक्त यूं ही गुजरने लगा था, लेकिन एक दिन मुझ पर यह राज भी खुल गया। जब एक दिन मैं बाजार से लौटी थी, मेरी सास सो रही थी, जमाल भी घर पर नहीं था। घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास थी। मैंने दरवाजा खुला तो मुझे जफर और रचना की बातों की आवाज आने लगी। जब मैं अंदर आई तो जफर इसे कह रहे थे, मुझे बस ये बताओ कि जमाल को वो सब कैसे मालूम हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? तुमने इसे ये सब बताया है? अल्फाज थे या कोई टी क़यामत जो मुझ पर टूटी थी। गुड़िया रो रही थी, नफी में सर हिला रही थी। जफर इसे यूं बातें कर रहे थे जैसे इसे मार डालेंगे। जब मुझे अपने आका पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मैंने पलट कर देखा तो जमाल खड़ा था। एक नजर मुझ पर डालकर आगे बढ़ गया और गुड़िया को जफर से पीछे धकेला। जफर को शायद हमारी आमदनी का इल्म नहीं हुआ था। जमाल को देखकर गुड़िया इसके पहलू से जा लगी। जमाल मुझे इस शख्स से बचा लो। गुड़िया अब भी कांप रही थी। जमाल इसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से बात कर रहा था। कहने लगा कि मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जफर की नजर जब मुझ पर पड़ी तो उनके होश ही उड़ गए थे। मेरे बहते आंसू देखकर वो समझ गए कि मैं सच जान चुकी हूँ। जमाल ने नहायत गुस्से से जफर से कहा कि अगर वो अब गुड़िया के आस पास भी नजर आया तो वो इसे खुद जेल भेज देगा। ये कहकर वो गुड़िया को अपने कमरे में ले गया। जफर मेरे सामने नजर नहीं उठा पा रहे थे। मैं वहीं करती चली गई। इतना बड़ा सदमा जाना शायद मेरे इख्तियार में ना था। वक्त गुजर चुका था। मेरी जिंदगी जफर के साथ बस एक समझौता थी, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने, इसने भी अभी तक यही बात की थी कि मेरी सिस्कियां शुरू हो चुकी थी। मैं कब से ज़ाबित बंधे हुए थे। मुझे रोता देखकर जमाल भी परेशान हो गया। मैंने कहा कि इसका मेरे घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। मेरे बाप और मेरे भाई इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अगर वो वापस गई तो इसे जान से मार डालेंगे। तुम अपने कमरे में रहो, वरना अम्मा जी मुझे बातें सुनाएगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि आप रोए मत, जो आपको ठीक लगता है आप वहीं कर ले। मैंने रात तक स्टोर रूम को ही एक कमरे की शक्ल दी थी, लेकिन जब रात को मैंने गुड़िया से वहां सोने के लिए कहा तो वो रोने लगी। मेरे गले लगकर मुझसे बीच कर कहने लगी, आप ही मुझे अकेला मत छोड़े, वो मुझे मार डालेगा। ये जुमला मैंने गुड़िया से इस शख्स के बारे में सुना था, वरना वो कुछ नहीं कहती थी। मैंने कहा कि कौन मार डालेगा? वो रोने लगी। वो मुझसे बार बार अपनी गलती की माफी मांग चुका था, लेकिन इसे माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं था। जमाल ने तलीम के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी कर ली थी। मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं बहुत जल्द रचना को लेकर अलग हो जाऊंगा। मैं इसके ज़र्फ को जितना सलाम पेश करती कम था। मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ जफर जैसे कमीने लोग होते हैं, वहाँ जमाल जैसे आला ज़र्फ भी होते हैं। न जाने मैंने ठीक किया या गलत। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के समकवास कहानियाँ वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।